Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study Camp in the Snow. इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा है बच्चों, तो हम आगे पढ़ेंगे कि we were feeling very hungry. सेकंड पैरा से है. We collected some firewood and stones to make a chula and cooked some food. After the meal we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers, which helped in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. तो जब इन्होंने कैंप जो इन्होंने मतलब इतनी हाइट पे लिया था, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, कल के क्लास में, तो ये बोल रही है ये टीचर, उन्होंने जब बहुत मेहनत के बाद ये कैंप खड़ा किया, वहाँ पे बहुत आंधी आ रही थी, जो मतलब ये चैप्टर है अप यू गो, ये ऑल अबाउट है माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग। तो ये जब एक स्नो क्लेड माउंटेन पे थे, तो वहाँ उन्होंने अब बोला कि अब हमें सोना था, वहाँ पे बिस्तरा तो होता नहीं है, इतने ऊपर से सब लेके यहाँ से ही जाना पड़ता है। तो बोले हमने कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे जमा की, आग जलाया और अपना खाना तैयार किया और खाया। उसके बाद हम स्लीपिंग बैग्स में सो गए। पहले हमें लगा इसमें नींद नहीं आएगी, लेकिन बाद हम इतने थके थे कि हम सो गए और उसमें गर्मी भी ठीक थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। जब हम अगले दिन उठे तो बर्फ़ हो रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफी snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, the mountains, everything looked white. Today we were at Columb Heights to 2700 meters. तो ये बोल रही है दूसरे दिन जब हम उठे सुबह, तो हमने हर जगह स्नो देखा, हमें ज़्यादा ऊपर चढ़ना था। आज हमें 2700 मीटर्स हाइट पे चढ़ना था। तो अभी ये 2134 हाइट की मीटर्स पे ही थे। We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we were kept sleeping. By afternoon we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. तो ये बोल रही है जब हम ऊपर चढ़े तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने स्नोमैन बनाया और एक दूसरे को स्नो फेंकते रहे और हमने बहुत एंजॉय किया। लास्ट डे एट कैंप, we were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gansing got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे दिया। तो ब्रिगेडरी बोल रही है जब हमें कैंप फायर पे लास्ट दिन हम थे, तो हम लास्ट दिन हमारा कैंप का था, तो वहाँ पे एक मतलब मीटिंग सी थी हमारे बीच, एक ग्रुप था, तो हम लेकिन आपस में एंजॉय कर रहे थे हमारा ग्रुप। तो इसमें ब्रिगेडर ज्ञान सिंह जो थे उसने मुझे बुलाया, तो मुझे लगा कि कोई गलती हुई है, लेकिन उसमें मुझे सर ने बेस्ट परफॉर्म अवार्ड दिया। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। Alone on the mountain top, a 12-year-old girl living the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was very cold and scary. They were alone without food and it was a long night. This happened to Bachandari Pal when she was a young girl. Bachandari grew up in Nakuri village in the Grihwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined a Nehru Institute mountaineering Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachandari did very well in her training. She was a trained woman in mountaineering course. In 1984, Bachandari was selected as a team member to climb the Mount Everest. तो ये एक कहानी है, क्योंकि बचपन में कभी कभी हमारे साथ जो मजाक में हो जाता है, कभी कभी उसकी वजह से किसी के साथ करियर भी बनता है। तो बोलते हैं कि बचंदरी पाल जो थी वो पहले बचपन में छोटी थी, अपने दोस्तों के साथ 4000 मीटर की दूरी पे एक माउंटेन पे, एक पहाड़ पे चढ़ी थी, लेकिन तब उसको पता नहीं था कि माउंटेनिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, साथ में कुछ चीज़ें लेनी होती है। तब तक तो बहुत लेट हो गया था और शाम हो गई थी। वो वहाँ से वापस आती तब लाइट नहीं थी और उसके पास लाइट भी नहीं थी और उसके पास खाना भी नहीं था। तो पता नहीं, वो शायद वही सो गई होगी आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जब वो बड़ी हो गई तो उसने माउंटेनियरिंग जो नेहरू इंस्टीट्यूट है वही ज्वाइन किया और वहाँ पे एक तो वो खुद पहले ट्रेन हुई, बाद में उसने दूसरी औरतों को और लड़कियों को भी ट्रेन किया। और
ये बचेंद्री पाल के साथ जो ये वाक़ा हुआ, इसकी वजह से मतलब वो इतनी इंथ्यूजियास्टिक बनी, इतनी करेजियस बनी कि उसने एक बार वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया 1984 में। तो उसके बाद है बच्चों स्नोस्टॉर्म। तो स्नोस्टॉर्म में क्या है, देयर वर 7 वुमेन इन द 18 मेंबर टीम ऑन द नाइट ऑफ 15 मई। द टीम वाज वेरी टायर्ड आफ्टर हैव रीच्ड द हाइट ऑफ 7300। ये मतलब प्रॉब्लम्स भी क्या होती है। 18 मेंबर थे एक टीम में, ये बोल रहे हैं 18 मेंबर थे एक टीम, 7300 की मीटर मतलब हाइट पे थे वो। द टीम पुट up their tents and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. They were a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried in the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under snow. The rest of team members returned to the base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon on 23rd May when Bachendri Pal stepped into the peak of 8,900 meters high mountain Everest, also called Sagarmatha in Nepal. There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top at the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with the rope. Only then two of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, pictured the national flag, and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. तो बोलते हैं कि मतलब स्नो स्टॉर्म एक आया जब बचेंद्री पाल की स्टोरी है 1984 में। ये 15 मई का दिन था जब वो इतनी हाइट पे थी। वो वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने वहाँ पे एक कैंप लगाया था, छोटा सा टेंट जो उनके साथ होता है। तो वो टेंट जो उन्होंने लगाया था वो स्नो स्टॉर्म की वजह से मतलब ऑलमोस्ट गिर गया और इतना स्नो स्टॉर्म उस पर पड़ा कि वो सब उस स्नो के नीचे दस गए और मतलब बाकी लोग किसी को इंजरीज भी हुई। बचेंद्री पाल जो ऑलमोस्ट स्नो के नीचे आ गई थी, उन्होंने उसको खोद के निकाला आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बाकी लोगों ने रेस्ट करना चाहा, लेकिन वो उठी और चलती रही। तो 7,300 के मीटर पे थे वो, अब वो 8,900 मीटर की हाइट माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पे चढ़े। और ये 23rd में था, वो 15 में था जब वो मतलब उनको स्टॉर्म जब वो 7,300 मीटर की दूरी पे थे। 23rd मई को वो वहाँ पे चढ़ी और उसने वहाँ इंडिया का झंडा गाड़ा। और ये हिंदुस्तान की पहली महिला है, पहली औरत है और वर्ल्ड की 5th औरत है जो उस पर चढ़ी। तो मतलब उसने अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि बचेंद्री पाल जो है एक औरत पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। क्यों? व्हेन डिड यू सी आवर नेशनल फ्लैग बीन होस्टेड? क्योंकि एक एजाज़ होता है बच्चों, जब कोई कुछ फतह करता है, कोई ऐसी अचीव करता है जो हिस्ट्री क्रिएट करता है, तो उसमें आपकी कंट्री आपको ऑनर करती है और आप चाहते हो कि हमारी कंट्री जो है मतलब आप उसको ऑनर देते हो, आप अपनी सक्सेस उसको डेडिकेट करते हो अपनी मदरलैंड को। तो उसके बाद इसलिए मतलब उसने वहाँ पे अपना फ्लैग होइस्ट किया। उसके बाद हम शेल्टर सो हाई पढ़ेंगे, तो ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा और इसके क्वेश्चंस मैं आपको आपके घर भेजूँगी। थैंक्स।